A very good afternoon to everybody present here. Sage International School welcome you all to this session where you will learn and know about your own personality. You'll develop your own self and find out what's hidden within you. About time skills, time management, and grooming your own personality. I welcome the guest, the teachers, and the other parents and members of the SAGE family. Before we move on with our SAGE talk, I would request Tanu ma'am to play the AV so that people over here get introduced with the SAGE group. Over to Tanu ma'am. Thank you, Tanu ma'am. With us, we have a special guest and today's trainer, we should say, who is going to train us on the different methodologies of life, Miss Rashmi Goyala. She is an image management consultant, software trainer, and TV and theater artist. She is an expertise personality grooming professional who trains people on time management, self-motivation, image management, and skills. We welcome you, Rashmi ma'am.
I would request now Rashmi ma'am to take over for the session. Thank you. Thank you so much, Nidhi madam. Very warm and cozy good afternoon to everyone, the management, administration, staff, teachers, parents of Sage Group, and my dear friends. My dear friends, isliye I am saying because I have invited few of my friends also over here, sure, so I should acknowledge them also. So thank you very much for this. You have shown us a very nice AV of Sage Group. उसके पहले मैं भी एक चीज बताना चाहूंगी. I have been associated with Sage Group through various other modes, like I have done a shoot for a Sage Group. I don't think so वो अभी शायद release नहीं हुई है, that ad film. It's a 15 minutes ad film. I'm also waiting for that because I did a good role in it. And then I have been visiting Sagar International Schools, Kolar Road, and then Ayodhya Bypass for various other functions as a chief guest, as a guest of honor, or to judge some competitions. So it's been always like now it's like a family for me, like visiting Sage. So this is the first time when we are all meeting virtually. कहीं ना कहीं से राह ढूंढ ही निकालते हैं हम सब लोग, चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो. So it's really very good कि I'm getting this opportunity today to speak few of the various on my various topics, जहां I can share some valuable tips with you all. And thank you so much again, Nidhi ma'am, for introducing me so nicely. And before I start my session, आपने मुझे तो introduce कर दिया. क्या है ये आजकल का जमाना, म्यूचुअल एडमिरेशन का जमाना है, जहां हमें एक दूसरे को तारीफ करनी चाहिए, सब खुश हो रहें जिससे एंड हैप्पी रहें, और फिर वो हैप्पीनेस अपनी स्प्रेड करते रहें. सो आई टू फाउंड आउट सम वेरी गुड फ्यू लाइंस. आई डोंट नो द ऑथर, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ दिखी, कहाँ मिली, बट कभी कभी होता है कि कहीं बहुत अच्छी चीज मिल जाती है तो मैं उसको संभाल के रिजर्व करके कहीं रख लेती हूँ. So for this is like ये मेरा session, it is dedicated to all the teachers of Sage Group, whether it is college, it is school, आपके जितने भी यहाँ पर educational जितने भी institute चल रहे हैं इस group के, इस umbrella के under, मैं उन्हीं सभी teachers को dedicate करते हुए मैं भी आपको wish करना चाहूँगी. So these lines, challenge, this word might be sounding very familiar with all those challenges going on Facebook and various other social networking sites. And today I want to salute you all for the challenge you all took. No, it's not the sari challenge, nor it's a motherhood challenge, और अभी recently आया हुआ couple challenge जो एक photo upload करना रहता है Facebook पे और challenge करके हम लोग एक दूसरे को बोलते हैं. That's also good, but मैं यहाँ पर उस challenge की बात नहीं कर रही हूँ. This challenge demanded that you go through digital transformation overnight. And you teachers said, challenge accepted, hiding your technology fears behind a simple smile because children's learning was at stake. The challenge demanded that you have to open your house for public viewing. And you all said, challenge accepted. The challenge demanded that you have to make it with limited or no resources. You said, challenge accepted. This challenge demanded that you may not get salaries, and you all said challenge accepted. The challenge demanded that you may need to teach while 30-50 parents are watching over their shoulders, judging you for every little move, including your voice modulation, your grammar, pronunciation, knowledge, love, and warmth. And you all said challenge accepted. So my appreciation and respect for you all relentless fighters can't be expressed in words. I want to salute you all the gurus across the world who continue to take on all the challenges. Those were piled upon them because children's learning was at stake and they care. So once again, I salute you all and welcome you all for this session. This session is like, it's not कि मैं कुछ बहुत different thing I'm going to share. ये रोज के जो मैम ने जैसे बताया time management है या self grooming है या personality grooming है, ये हम बहुत ज़्यादा सब जगह सुनते आ रहे हैं. ये कोई नई चीज़ नहीं है. ये words, we are all acquainted with all those words and all those tips. मगर शायद मेरे कुछ experiences, like I have been into this field for last 2.5 decades.
I have traveled around the world to acquire more knowledge. And being in this field for almost 24 years in education, I have been doing various research and बहुत सारे experience जो बटोर के जो अपने reserve करके रखते हैं और फिर जहाँ ज़रूरत होती है उसको share करते हैं. So I think so कुछ valuable tips I would be sharing. And let me tell you, मैं वो सारी चीजें खुद अप्लाई करती हूँ अपने ऊपर. उसके बाद में फिर then I teach those things. So इसी को शुरू करते हुए निधि मैम, आप मेरे साथी हैं क्या आज के? मुझे कौन बताएगा मेरी स्क्रीन जो मुझे शेयर करनी है? तो I just wanted to see कि मेरी स्क्रीन वगैरह विजिबल है कि नहीं. मेरी स्क्रीन बस मैं अपनी स्लाइड शेयर एक्चुअली कुछ मेरे स्लाइड्स के थ्रू पावर पॉइंट्स प्रेजेंटेशन है, वो आप बस मुझे बता दीजिएगा अगर दिखने लगे. तो अगेन फॉर यू ऑल, फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब जिंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में. फुर्सत में करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, अभी तो उलझे हैं खुद को सुलझाने में. इसका दिल रख कभी उसका दिल रख, इसी कश्मकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा. So आज हम जो भी बातें करने वाले हैं, it's all about you, it's all about we, it's all about us. जितने भी बातें हम करेंगे, टाइम मैनेजमेंट है, मैंने कुछ एक दो नई चीजें भी आपके लिए बनाई हैं. हम डिजिटल अपना जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है. ये सारी चीजें हम आज किसी को पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ेंगे, हम जॉब में कहीं प्रेजेंट करने, हाँ ये अलग बात है, ये हमारी जॉब में काम आती है, ये सब चीजें हमारी प्रोफेशनल लाइफ में काम आती है, हमारी पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में, सोशल लाइफ में. जितने भी हमारे चार पहिए हैं उन चारों लाइफ में ये सारी चीजें काम आती है. एंड वी ऑल नो कि हम इनको कब कहाँ इंप्लीमेंट करना है, कहाँ किन चीजों को अप्लाई करना है. सो हम वो करेंगे. निधि मैम जस्ट लेट मी नो, मैं स्लाइड शेयर मेरी दिखती है तो. टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड है हम सब लोग, तो जस्ट आई विल टेक फ्यू सेकंड्स. या मैम. Ma'am, you are the co-host, so you can share the screen. Okay. Yeah. You just let me know visible हो जाए तो, so that I should know ना मेरी आवाज आ रही है, मेरी स्क्रीन. Okay. Sure. So we'll be starting. Actually हमारे पास टाइम बहुत कम है. जब मुझे रघुवंशी मैम ने बोला कि मैम 1 घंटे में से भी आपको 50 मिनट्स मिलेंगे, मैंने कहा इतनी बड़ी ज्यादती कर दी मेरे साथ में. एक टीचर को आप ये बोल दो कि आपको बहुत लिमिटेड बोलना है, और जहां इतनी अच्छी ऑडियंस आपको मिल रही है तो आपको मैडम बिल्कुल समय से बंध के चलना है. सो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ही है. अगर हम टाइम मैनेजमेंट को अगर फॉलो कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है. मैडम दिख रहा है क्या मेरे स्क्रीन जिस पे लिखा आ रहा है टाइम मैनेजमेंट? या मैम. या इट्स विजिबल. ओके फाइन. पहले तो मैं ये शेयर करना चाहूंगी, व्हाई डू आई मैनेज माय टाइम, और मैं क्यों यहाँ पर आपसे बैठ के बातें कर रही हूँ. देखिए टाइम मैनेजमेंट का कोई कोर्स नहीं होता है, ये भी कोई कोर्स नहीं है हम देखा जाए तो, या मैं ये स्टडी करने के लिए अब्रॉड नहीं गई, या मैंने इसके एमबीए या कोर्सेज नहीं करे हैं. इट्स अ टॉपिक ऑफ लाइफ स्किल, इट्स अ टॉपिक ऑफ सॉफ्ट स्किल. ये बहुत जरूरी है हम सभी के लिए. सो हाउ डिड आई मैनेज, बिकॉज ये सारी चीजें मैं इम्प्लीमेंट करती आ रही थी, और बिल्कुल हम होते हैं ना अपने रूल्स बना लेते हैं, सिद्धांत, प्रिंसिपल वी मेक इन आवर लाइव्स, और उसी को हम फॉलो करते रहते हैं और वो बहुत अच्छे रिजल्ट देते चले जाते हैं. और फिर उस चीज को हम अपने प्रिंसिपल जब बना लेते हैं तो वी लाइक टू शेयर विद पीपल हु आर अराउंड यू, सो दैट दे कैन आल्सो बेनिफिट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. तो ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते रहते हैं कि यू डू दिस थिंग, यू डू, हाउ डू यू मैनेज द टाइम. So let me tell about myself. Why do I manage my time? Because while growing up and experiencing my professional life, home management, of course, you have family, we all have family life, raising kid, rather I would say kids, because my husband is one more kid in my house. I learned that time is more important than money. Then I made a conscious decision on how can I build the right habits, क्योंकि सारी बातें तो habits के ऊपर हैं. How can I structure my life? How can I follow a system? How can I actually build a schedule for lifetime? And finally, I found something that is adaptable, time-tested, and result-oriented. So this is my years of research experiencing and applying this power of schedule in my life. So my managing my time started enriching my life. And same I want for you all.
उसके पहले स्टार्ट करने के पहले चैट बॉक्स ओपन है सबका, मेरे ख्याल से हाँ सब लोग आंसर कर सकते हैं. विल जस्ट हैव अ शॉर्ट क्विज रिलेटेड टू टाइम मैनेजमेंट, उसके बाद में हम लोग आगे चलेंगे. और जितने भी एज के टीचर्स या एनी वन ऑफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन राइट डाउन एनी ऑफ द थिंग्स इसमें से जो भी आपको काम की लगती हैं, बिकॉज आई एम श्योर 10 में से 1 या 2 टिप्स तो आपके काम की आएंगी और आप शायद उसको फॉलो करना चाहेंगे. एंड व्हाई नॉट, लाइफ इज द नेम ऑफ एक्सपेरिमेंट. मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ रोज के हर चीज में. यू ऑल्सो प्लीज ट्राई. मजा आता है, एक एंथू मिलता है, एक जोश मिलता है जब हम कुछ एक्सपेरिमेंट ट्राई करके देखते हैं, छोटी छोटी चीजों में, टाइमिंग्स को लेकर के, सोशल मीडिया को लेकर के, हर चीज को लेके. जस्ट try and experiment things in your life. Okay, so this is the quiz. Look, you can see the first question. Managing your time well makes you A, successful, B, wealthy, C, healthy, D is Sorry, ma'am. Sorry to disturb you, ma'am. yes, yes. Booted, I guess. Booting is going on, so we cannot see the questions. Okay, नहीं मुझे तो पूरी clear दिख रही है screen. Should I stop sharing and again share? Yeah, ma'am. Let's try. Again, yeah. Okay, so here I'm again with this, the screen showing quiz. If you can see, please, Nidhi madam. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Now it's visible. It's very important screen दिखना इस जगह पे एटलीस्ट जब मैं बात कर रही हूँ कि हम कुछ क्विज करेंगे. एंड यू शुड, बिकॉज आई वांट यू ऑल नॉट टू सिट कि आप बस ऐसा लगे रश्मि आई और लोरी सुना के चली गई. आई वांट यू आल्सो टू गेट इन्वॉल्व इन दिस. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैनेजिंग योर टाइम वेल मेक्स यू सक्सेसफुल, वेल्दी, हेल्दी, ऑल अबव. डी है तो डी लिखिए, ए है तो ए लिखिए, बी है तो बी लिखिए, सी है तो सी लिखिए. आपको जो भी लग रहा है, इट्स योर आंसर. व्हाटएवर यू वांट टू राइट, you can write. Then uniqueness of time is, okay, I'm getting answers D, very good. And the second question is, uniqueness of time is that it is irreplaceable, retrievable, can be reserved, can be exchanged. I just want to see again answers like second question ka A. Okay. ओके, भावना श्रीवास्तव मैडम इज हियर. हेलो मैडम. बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई. इट्स रियली वेरी गुड टू सी सम नोन फेसेस. ओके, सेकंड इज बीइंग डन. थर्ड इज prioritization of task. Prioritization means प्राथमिकताएं जब हम किसी भी काम को देते हैं. First, work efficiently, doing the urgent and important work first, doing the high important and low urgency work first. Procrastinating work. Procrastinating means like टालने की प्रवृत्ति. ये एक हैबिट होती है जब हम टालने की आदत हमारे अंदर आ जाती है. हम सबके अंदर होती है थोड़ी, किसी के अंदर ज्यादा, किसी के अंदर थोड़ी. And I really feel shameful in saying that I also have a little bit of habit of procrastinating my few of my things, like when it comes to personal, my fitness or something. हाँ, Monday से शुरू करेंगे, Monday से diet, Monday से gym, Monday से yoga, Monday से walk. So we all have these kinds of tendencies. So किसी में कम या किसी में ज्यादा. So third is like, what is the answer? I just want to see. Prioritization, प्राथमिकताएं जब हम काम को देते हैं तो it's A, B, C, D. Work efficiently, doing the urgent and important, doing the high important and low urgency. Or D, procrastinating. Let me see what are the answers. Chat box. Okay. Alpana, Poonam, everyone is saying A. Work efficiently, doing the urgent and important work first. It will be B, doing the urgent. If it's for third, I don't know, chat में कभी ऊपर नीचे भी हो जाता है. So for third, it is like doing the urgent and important work first. हम जब जिंदगी में प्राथमिकताएं देते हैं तो बिल्कुल urgent is immediate. आपकी अभी की अभी जरूरत है उस काम के, उस काम को आपकी जरूरत है, तो आपको पहले वो करना पड़ेगा. And it should be important also. Then fourth one is time management can be done effectively if logbook is maintained, clock and watch is updated, money is there and hard working quality is there. I really want to know the answers. आप कुछ भी, कोई इससे हम judgment नहीं कर रहे हैं. Whatever you want to, but please get involved in this. क्या answers आ रहे हैं इसमें fourth में? D. Okay, great.
टाइम मैनेजमेंट, मैंने क्वेश्चन फिर से देख लिया, टाइम मैनेजमेंट कैन बी डन इफेक्टिवली। सॉरी, जितने लोगों ने डी लिखा था, इफ फोर्थ का आंसर डी लिखा था, इट विल बी ए, इफ लॉग बुक इज मेंटेन। हार्ड वर्किंग के साथ में हमें थोड़ी स्मार्ट वर्किंग का जमाना है साहब आजकल, तो स्मार्ट वर्किंग तभी हो पाएगी जब हमारा शेड्यूल बना रहेगा, हमारी लॉग बुक तैयार रहेगी, दिमाग के अंदर होने लगती है। पहले हम डायरी में लिखते थे, फिर मैंने शिफ्ट किया कलर नोट, और ऐसे आपको बहुत सारी जो हम ये बोलेंगे थर्ड पार्टी के थ्रू, हमारे डिजिटल मोबाइल पे आजकल बहुत सारी आपको डायरीज आ जाएंगी। मेमोज तो डिफॉल्ट के थ्रू आते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर डायरीज हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, उनमें कलर्स चेंज होते हैं, फॉन्ट चेंज होते हैं, अलग अलग टाइप से आप उसमें अपना सब कुछ लिख सकते हैं, बना सकते हैं। सो लॉग बुक मैं उसमें मेंटेन करा करती थी, अभी भी करती हूँ फॉर मंथली और वीकली, बट डेली की तो दिमाग में बनती है कि कल क्या काम है, 15 काम में से पहला प्रायोरिटाइजेशन किस काम को देना है मुझे, व्हाट इज द अर्जेंट वर्क। ये में एक फॉर्मूला है अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट का, विल शिफ्ट टू दैट आल्सो। सो आई विल गो ऑन टू अनदर स्क्रीन। another screen is hanged up. प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स, मैंने पिछली स्लाइड में बताया, लाइक टालने की जो प्रवृत्ति होती है, तो प्रोक्रास्टिनेशन मीन्स helps in time management, completing work on time. It's a habit, systematic working. I would like to know the quick answers for this also. Question number 5 ka, it's A. Okay, Pradeep sir, Poonam ma'am, Alpna ji, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। So procrastination means helps in time management, completing work on time. It's a habit, systematic working. It's a habit. मैंने बार बार एक वर्ड यूज कर रही हूँ, टालने की प्रवृत्ति। व्हाट इज प्रवृत्ति? इट्स अ हैबिट। ये हम लोगों की आदत में शुमार हो जाता है। जैसे मैंने कहा, मेरे अंदर भी हो गई है, कहीं ना कहीं हम सबके अंदर है। कोई भी चीज को लेकर के हम टालते रहते हैं। सो एक हैबिट है जिसको चेंज किया जा सकता है। सो लर्निंग टू से नो, अगर हम इनकार करने की हमारी आदत होती, हम इसको अपनी फॉर्मूला एक अपना लेते हैं अपनी लाइफ में, इफ वी आर रेडी टू से नो, इट विल हेल्प एंड सेव टाइम, it will waste time, it will destroy time, it will cut time. This is really very simple. If you know it, it's A, it will help and save time. क्योंकि हम जिंदगी में अच्छा बनने के चक्कर में सबको हाँ यस ओके हम कर देंगे, वो कर देंगे, और फिर हम देखते हैं हमारा खुद का कितना ज्यादा टाइम। हाँ, इट्स गुड टू बी वेरी, आपके दायरे में है, अगर आपके उसमें है आप कर सकते हैं किसी की कोई हेल्प या काम, बट फिर भी हमारी कुछ हैबिट होती है, सारा काम अपने ऊपर ले लेते, कर लेंगे हाँ सबको बोलना, और फिर करते नहीं है, तो वो और ज्यादा बुरा होता है हमारी, क्योंकि हमारा एक टॉपिक इसमें इमेज मैनेजमेंट भी है। सो लेट मी टेल यू, इससे और ज्यादा इमेज खराब होती है। बस ना बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए, वो भी हम अभी आगे देखेंगे। सो ना बोलना भी सीखना आना चाहिए। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट, मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। एक जमाने में मैं भी सबको हाँ बोलती थी, और फिर बहुत स्ट्रेस रहता था, मतलब ठीक है अभी तो इसका ये काम करना, वो काम करना, और अपने काम सफर होते थे। सो इफ यू आर प्रोफेशनल पर्टिकुलरली, सो आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किस तरीके से ना बोल सकते हैं। ओके, वेटिंग टाइम। टाइम मैनेजमेंट में वेटिंग टाइम का मेरा एक फॉर्मूला है, नाम से शायद आपको समझ में आ रहा होगा। सो इट्स अ क्विज, यू फर्स्ट गेस। वेटिंग टाइम इज द टाइम विच वी गेट बिटवीन मीटिंग्स, बिटवीन क्लासेस एक्सेट्रा, और इज इट टू वेट फॉर अदर्स, द टाइम वेट्स फॉर अस, एंड टाइम विच हैज वेट। इसमें से आई वुड लाइक टू सी ये फॉर्मूला किसको समझ में आया है। ओके, चैट का आइकॉन गायब हो गया, डजंट मैटर्स। वेटिंग टाइम मैं बता देती हूँ। इट्स द टाइम व्हिच वी गेट बिटवीन मीटिंग्स, क्लासेस एंड एटसेट्रा। उसको मैं बताऊंगी हाउ वी कैन यूटिलाइज इट। डेलीगेटिंग वर्क विल हेल्प, हम जब किसी और को डेलीगेट कर देते हैं काम, सो इट्स A in saving time, या फिर B you can do other important work, या फिर C mind is not occupied in less important work, या फिर D all the above. I think it's really very easy. It's like all the above. Okay, so 2 more questions. Prime time. प्राइम टाइम आपने अभी तक सुना होगा, आजकल प्राइम टाइम पे क्या आ रहा है? केबीसी एंड बिग बॉस, ये सब प्राइम टाइम शोज हैं। सो प्राइम टाइम इज द बेस्ट टाइम व्हेन वी वर्क effectively and energetically. It's related to age, or is it the time when we are tired, or none of the above? So the answer will be A. Best
this time when we work effectively and energetically, जितने भी लोगों का ए था, अपने आप को you can tap your back by yourself, शाबाशी दे सकते हैं. अगर ये सामने की क्लास होती तो और ज्यादा मजा आता इन सब चीजों में, but doesn't matter, जो है हम उसी में ही खुश हैं. At least we are able to perform all these virtual classes also. इसमें भी हम मिले, अच्छी बात है. So मैं आप सभी लोगों के लिए शाबाशी देती हूँ जिनके आंसर सही आ रहे हैं. Last, this organization refers to messy and cluttered desk, messy filing system, like बच्चे की 10th की मार्कशीट और हस्बैंड का राशन कार्ड, फैमिली का राशन कार्ड या हस्बैंड का कोई डॉक्यूमेंट सब इधर उधर एक ही फाइल में पड़े हुए हैं. फिर क्लटर्ड डेस्क, उसी पे आपका नेल कटर पड़ा है, उसी पे एक पार्ले जी का बिस्किट पड़ा है, उसी डेस्क पे आपके मार्कशीट्स पड़ी हैं, उसी डेस्क पे और कुछ इंपॉर्टेंट बिजली का बिल पड़ा है और सारी चीजें एकदम मैसी. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑफिस में, हमारी डेस्क पे, हमारे घर की टेबल पे, या व्हाई अबाउट ओनली अबाउट आई एम टॉकिंग अबाउट डेस्क. हम अपने वार्डरोब्स की, कबर्ड्स की, किसी भी चीज की अगर बात करें, एवरीथिंग शुड बी वेरी मच सिस्टमैटिक. बड़े हंसी आती है, कोई बहुत अच्छा प्रोफेशनल बोलता है एक मोजा मिल गया, मेरा दूसरा मोजा कहाँ है, व्हाई दिस इज हैपनिंग, या मेरा नैपकिन. सब कितना भी छोटा आपका, आपके घर में चलिए वार्डरोब कबर्ड नहीं मिला हो, संदूक मिला हो, हम सबको छोटी छोटी स्पेस हमारी रहती है पर्सनल, जहां हम अपनी चीजों को बस रखना आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं. माइंड इट, ये सारी चीजें आपका बहुत टाइम सेव करेंगी. जब आपको अचानक से किसी भी चीज की जरूरत होती है, सब चीजें इतनी सिस्टमैटिक रखने की आपकी आदत होती है कि आपको विद इन सेकेंड्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं. या आप 7 समुंदर पार भी कहीं किसी को फोन पे बताएंगे, मेरा वो वार्डरोब खोलो, उसमें वो दराज खोलो, उसके अंदर ये फाइल खोलो, उसके अंदर ये वाला कागज मिलेगा, एंड पीपल आर एबल टू फाइंड. सो ये होती है एक organized life जिसको हम बोलते हैं. So we are talking about this organization. It refers to messy and cluttered desk. We all know it's very easy. Messy filing system, desktop full of unnecessary things. यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी. बहुत सारे लोग बोलते हैं ओ मेरी गैलरी फुल हो गई, ओ मेरी गैलरी फुल हो गई, मैं फोटो नहीं खींच सकते. डेस्कटॉप की बात करें हम, कंप्यूटर की, आज के जमाने में हम मोबाइल की भी बात करें, भाई आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है, आप उसमें ट्रांसफर कीजिए, अपने मोबाइल की गैलरी क्लीन करके रखिए. बहुत सारे आइकॉन्स जो जरूरत नहीं है, फोल्डर्स बनते हैं, ये सारी चीज हमारे हाथ में दिन भर रहता है स्मार्ट मोबाइल, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग क्यों नहीं बहुत अच्छे से करके रखते हैं. तो ये सारी चीजें भी बहुत अच्छी हो जाती है. डॉक्यूमेंट्स आप एक फोल्डर में करिए, फोटोग्राफ्स आप एक फोल्डर में करिए. सो ऑल द अबव. So all these things, ये सब जिसमें जिन्होंने भी इसके सही आंसर्स दिए हैं, I would like to congratulate you all. So मेरा एक सक्सेस फंडा है, being successful doesn't makes you manage your time well, but managing your time well makes you successful. जरूरी नहीं है जितने भी बहुत फेमस लोग हमें दिख रहे हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं अपने अपने क्षेत्र में, या हम जिनके भी नाम देखते हैं, it doesn't means कि वो सिर्फ इस पर्टिकुलर, ये होगा एक एलिमेंट हो सकता है किसी में, बट नॉट ऑलवेज सबके लाइफ में ये एलिमेंट नहीं होगा कि उन्होंने बहुत अच्छा टाइम को मैनेज किया होगा या बहुत अच्छा वो कर पाते हैं. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. लाइक सक्सेसफुल के दूसरे बहुत सारे रीजंस होते हैं, सफलता के पैमाने बहुत सारे हैं. दे माइट बी लाइक उन्होंने इनहेरिट किया है बिजनेस या प्रॉपर्टी एंड दे आर सक्सेसफुल इन दैट बिजनेस, या नेम, उस बिजनेस का जमाया एक ब्रांड मिल गया उनको एंड दे आर सक्सेसफुल. तो सक्सेसफुल के बहुत सारे पैमाने होते हैं. सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वी, इट्स बेसिकली मैनेजिंग योर टाइम वेल मेक्स यू सक्सेसफुल. देखिए बहुत ज्यादा ख्वाहिशें नहीं है हम सबके भी, वी आर स्मॉल टाउन पीपल, हम जो यहाँ रह रहे हैं भोपाल में, तो जरूरी नहीं है कि हम बहुत ख्वाब, लेकिन हमारी जिंदगी में हमने जितनी भी चीजें सोची, अगर हम उसमें भी, हमारे सबके अपने अपने सफलता के पैमाने हैं. आई फील मेरी जितनी भी सफलता है, आई ओ टू टाइम मैनेजमेंट. सो अगर हम टाइम को मैनेज कर लेते हैं अच्छा, तो हम सक्सेसफुल बन जाते हैं. तो सक्सेसफुल डजंट मीन्स कि हम सबको अमिताभ बच्चन बनना है, हम सबको सचिन तेंदुलकर बनना है. हम जो हैं, जिस फील्ड में हैं, जो भी हमने सफलता के पैमाने अपने लिए तय करके रखें, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हम फिक्स करके रखते हैं, वो है. अभी हमने मिसमैनेजमेंट की बात की थी, मैसी डेस्क, क्लटर्ड फाइल्स और जो मिस अपॉइंटमेंट्स वगैरह हो जाते हैं कई बार, दीज आर ऑल दोज थिंग्स, उसी को मैं बता रही थी. देन कुछ चीजें हम अपने आप से पूछें, डू यू कंप्लीट द प्लान टास्क ईच डे, या आप सब अपने अंतरात्मा से पूछे, डू अ लिटिल बिट ऑफ सोल सर्चिंग विद मी. पता नहीं क्लास खत्म होने के बाद आप कितनी करेंगे. सो जस्ट टेक इट एज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन, लाइक वी ऑल आर नाउ टॉकिंग टू आवरसेल्फ. जैसे मैंने कहा था कि ये सिर्फ हमारे खुद के लिए है, ये थोड़ी देर हम अपने आप को दे रहे हैं, 2 बजे तक का टाइम है, इसमें हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है. जस्ट आस्क योरसेल्फ, अपना आत्ममंथन कीजिए, डू यू कंप्लीट द प्लान टास्क ईच डे और हैव टेंडेंसी टू प्रोक्रास्टिनेट, इफ सो व्हाई.
इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। क्लास के बाद थोड़ा सा आप इस पे विचार कीजिएगा, इसका आंसर मिले तो वो भी नोट डाउन कीजिएगा। एंड आई एम श्योर कोई भी इंसान जब ऐसे कुछ अपने आप से पूछता है सवाल और उसमें कुछ कमियां निकल के आती है, जब वो लिखता है तो वो उसको सुधारने की कोशिश जरूर करता है। हम चाय में मक्खी गिरी हुई नहीं देख करके पी पाते हैं। सो अपनी गलतियां जब हमारे सामने आती हैं तो हम उसको, तो बेटर है कि अपनी गलतियां हम निकालें। सो हैव यू प्रिपेयर्ड टाइम लॉग्स एंड हैव क्लियर आइडिया ऑफ टाइम? एक टू डू लिस्ट जो मैंने अभी बात करी कि किस तरीके से आप कहीं भी बना सकते हैं, पहले लिखने की आदत डालिए, अपने आप को मॉनिटर कीजिए, हमारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, किन चीजों में ज्यादा जाता है। हमारे मॉनिटर हम खुद हैं। अब हमें वो स्कूल डेज में जो मॉनिटर मिला करता था, वो हमारे नेल्स चेक करता था, हमारे 2 चोटियां हैं कि नहीं गर्ल्स की, बॉयज के, लाइक ऑयल्ड एंड कोम्ड हेयर हैं कि नहीं, ये सारी चीजें जो वो हुआ करती थी, वो जमाना नहीं है। नाउ वी आर सो मच मैच्योर्ड इनफ कि हमें खुद अपना मॉनिटर बनना है, तो हम अपना मॉनिटर खुद करें, अपने टाइम को मॉनिटर करें, मेरा सबसे ज्यादा टाइम कहाँ जा रहा है। सो क्या आर यू स्पेंडिंग मोर टाइम देन रिक्वायर्ड फॉर रूटीन एक्टिविटीज? ये जब हम मॉनिटर करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यस ओके। लाइक आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, आप सब लोग नहाने में कितना टाइम लगाते हैं? या मे बी वी कैन आस्क मोर सिंपलर क्वेश्चन, चलिए नहाने में हो सकता है यू माइट फील एम्बैरेस्ड, तो आप ब्रश करने में कितना टाइम लगाते हैं? एक आइडिया तो होगा सबको। आई डोंट वांट टू रीड कि कोई यहाँ पर लिख दे कि 10 मिनट। आई डोंट थिंक कोई डेंटिस्ट भी होगा अगर 10 मिनट तक क्या पूरे घिस डालेंगे क्या हम, दांतों की परत निकल जाएगी भाई। सो इट्स, अब ये बात यहीं पर आ रही है, क्या आप अपनी डेली रूटीन एक्टिविटीज जितना टाइम रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा टाइम दे रहे हो? ये कब नोट कर पाओगे? व्हेन यू विल बी मॉनिटरिंग योर टाइम। तो एक हफ्ते तक आप अपने टाइम को मॉनिटर कीजिए, कहाँ क्या क्या आप किस चीजों में टाइम जाता है। वो जब मॉनिटर कर ले तो हमें समझ में आ जाता है कि नॉर्मली जनरली सब पीपल, मेनी पीपल, अगर वो 3-4 मिनट्स में ब्रश कर लेते हैं तो व्हाई आई एम गिविंग 10 मिनट्स? आई एम रॉन्ग समवेयर। अगर सब लोग 10-20 मिनट्स आर एनफ, 20 मिनट्स में नहा लेते हैं, तो मैं 45 मिनट्स क्यों लगा रहा हूँ या लगा रही हूँ? सो आर यू रियली यूटिलाइजिंग टाइम इफेक्टिवली टू अचीव योर गोल्स? आपने लाइफ में जितनी भी चीजें फिक्स करी हैं, क्या उसके लिए आप टाइम को इफेक्टिवली यूज कर रहे हो? या आपको जबरदस्ती, आप टाइम पे नहीं होते तो रश्ड, आप भागते दौड़ते जिंदगी के सब चीजों को कैच कर रहे हो, या आपको धकाया जा रहा है एंड फाइनली यू आर स्ट्रेस्ड? सो इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैं बता दूं, एक क्वेश्चन उसमें था कि टाइम इज इररिप्लेसेबल। इसकी वैल्यू ये है कि ना तो हम इसको बचा के लॉकर में, आज मेरे पास अगर बहुत ज्यादा टाइम है, सिर्फ आज यही एक क्लास है, तो मेरे पास बाकी के पूरा दिन बचा हुआ है। सो इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास कल का दिन बहुत ज्यादा बिजी है, कल मेरे यहाँ भी क्लास है, कल मेरी वहां भी क्लास है, तो आज जो मेरे पास 5 घंटे एक्स्ट्रा है उनको जाकर के मैं सेफ में लॉकर में रख दूं। इट्स नॉट पॉसिबल। मैं उसको रिजर्व करके नहीं रख सकती कि मैं कल निकाल लूंगी उस टाइम को और यूज कर लूंगी, कल मेरे पास टाइम की बहुत कमी है तो ये 5 घंटे कल काम आएंगे। Is it possible? I'm sure you all will say no. Irreplaceable, इसको कोई चीज से आप रिप्लेस नहीं कर सकते। मेरे पास में अगर आज बहुत ज्यादा पैसा है और किसी के पास टाइम बहुत ज्यादा, मैं बोलूं भैया ये पैसे ले लो, 10,000 रुपए तुम्हारे 10 घंटे मुझे दे दो क्योंकि तुम तो फ्री बैठे हो दिन भर, मुझे तो बहुत सारे काम है, मुझे 10 घंटे बहुत, इट्स इररिप्लेसेबल। नोबडी वुड बी एबल टू डू दीज काइंड्स ऑफ एक्सचेंज। नॉन रिट्रीवेबल। अभी सुशांत सिंह के केस में एसएसआर में बहुत सारी चीजें सुनने में आई, उसमें एक बड़े अच्छे मेमेज भी बने इसमें, जब फाइल उनकी रिट्रीव हो रही थी, व्हाट्सएप चैट्स वगैरह रिट्रीव हो रही थी, बहुत सारी चीजें, तब मेरे ख्याल से पहले बहुत से लोगों को, आम जनता को नहीं पता होगा, क्लियर हो गया होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड है कि चैट तक जब व्हाट्सएप की रिट्रीव हो गई, आपकी डिलीटेड फोटोग्राफ्स भी रिट्रीव हो जाती हैं, आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप, कंप्यूटर से बहुत सारी चीजें आप रिट्रीव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है एंड इट्स रियली वेरी गुड। बट क्या टाइम को हम रिट्रीव कर सकते हैं? नो, वी डोंट हैव आंसर फॉर दिस। सो मॉनिटर योर टाइम, मैंने आपको बताया कि एक हफ्ते तक आप मॉनिटर कीजिए कि आपका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, एक लॉगबुक बना के रखिए और उसको फिर एनालाइज कीजिए एट योर वीकेंड कि मेरा कहाँ कहाँ किस किस दिन में टाइम वेस्ट हुआ, आपको पक्के में पता चलेगा। आप बस आवर्स लिखिए, 2 आवर्स में फेसबुक पे बैठी रही, बिल्कुल मैं 1 घंटा चैट करता रहा व्हाट्सएप पे बैठ के, या मैं पिक्चर्स देखने बैठी किसी के वेकेशंस की, तो देखती चली गई, एक एक जूम कर करके 2 घंटे चले गए, पता ही नहीं चला। उसके शूज नोट डाउन कर रही थी, उसकी लेस का कलर नोट डाउन कर रही थी। सो देयर आर दीज काइंड्स ऑफ पीपल। वंस इन अ व्हाइल इट्स ओके व्हेन यू आर फ्री, कोई और चीज नहीं है, मगर ये अगर आपकी हैबिट में हो जाता है तो आपके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कोई भी काम को करने से पहले 3 क्वेश्चन मैं जरूर पूछती हूँ, प्लीज नोट इट डाउन, ये जरूर पूछिए। व्हाई एम आई डूइंग दिस, ये मैं क्यों कर रही हूँ, एंड व्हाट इज द गोल, इसका एजेंडा क्या है, या इससे क्या, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डूइंग दिस, एंड व्हाट हैपेंस इफ आई चूज नॉट टू डू इट, अगर मैंने ये काम नहीं किया
तो क्या होगा? क्या बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है? Am I going to lose something? या कोई और कर लेगा और वो भी इक्वली गुड करेगा और उसके करने से भी कोई फर्क इतना नहीं पड़ना है, तो चल जाएगा काम उससे भी. So just ask this question. So now let's do an activity. I'll give you 8,64,000 rupees in cash just now. और मैं अगर आपको ये इंस्ट्रक्ट करती हूँ कि आप सब लोग जाइए और इसमें से एक सिंगल पेनी भी आपको बचा के नहीं लानी है पूरे 24 घंटे में, बट आपको वाइजली यूज करना है. ये नहीं दान बांट दिए, पूरे 8,64,000 रुपीज आपको स्पेंड करने हैं. मैं बहुत ज्यादा आपको डिलेमा में नहीं डालती हूँ. इट्स जस्ट सेकंड्स जो हमारे पूरे दिन भर के 8,64,000 आर सेकंड्स. अगर हम इसको वाइजली यूज करें तो देखिए हमारे पास ये कोई कम अमाउंट नहीं है. प्रियोरिटाइजेशन की मैंने क्विज में बात करी थी, उसका जो मैं फॉर्मूला बोल रही थी कि किसी ने उसमें गलत आंसर्स भी दिए थे. जस्ट अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज की जब हम बात करें, हमारे पास दिन भर में बहुत सारे काम रहते हैं. यहाँ भी जाना है, वो फोन कॉल करना है, बच्चे का ये काम है, हस्बैंड का ये काम है, घर का ये काम है, ऑफिस का ये काम है, मेल भी बुलवा रहे हैं, टीचर्स को क्लासेस भी लेनी है, बट एचओडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बुलवाए, मेल करिए अर्जेंट, और क्लास भी लेनी है, और उसी वक्त हस्बैंड भी कुछ बोल रहे हैं. तो वर्क फ्रॉम होम का जो अभी रूटीन चल रहा है उसमें भी और आगे भी जाकर के बहुत सारे ऐसे काम आएंगे जिसमें यू आर ऑलवेज कंफ्यूज. एंड लेट मी टेल यू, ये सर्वे में निकल के आया है 80% टाइम बिकॉज वी डोंट हैव गुड शेड्यूल्स एंड हम अपने टास्क को नहीं पहचानते कि हमें पहले क्या करना है, किन चीजों को प्राथमिकता है. और ये मैं सिर्फ टाइम मैनेजमेंट में भी नहीं, आपको एक लाइफ का फंडा बता रही हूँ. अपनी जिंदगी में भी प्रायोरिटाइज करना सीखें कि हाँ ये 6 महीने या ये साल मुझे इन चीजों को देना है. These are the important thing which needs me. My family needs me. My children needs me. मैं 2 साल बाद ये कर लूंगी. बहुत सारी चीजों को बस एक बार प्रायोरिटाइजेशन की आदत आपके दिमाग में पड़ गई ना, प्राथमिकताएं किसको कब क्या देनी है, बहुत लाइफ क्लियर हो जाती है. हाई अर्जेंसी, हाई इंपॉर्टेंस. फर्स्ट फॉर्मूला इज हाई अर्जेंसी. अभी इमीडिएट सबसे पहले उसी चीज को देखना है, वरना बहुत सारा नुकसान हो सकता है. एंड इट इज इक्वली इंपॉर्टेंस. तो हाई अर्जेंसी स्लैश हाई इंपॉर्टेंस. सो इट्स रियली वेरी, ये सबसे पहले करना है. देन हाई अर्जेंसी, अर्जेंसी, एंड देन लो इंपॉर्टेंस. अगर ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो आपके लिए, लेकिन उसकी अर्जेंसी बहुत ज्यादा है, तो वो आपकी सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में आएगा. देन थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में आप डालेंगे हाई इंपॉर्टेंस, लो अर्जेंसी. अर्जेंसी उसकी नहीं है तो थोड़ी देर बाद भी या एक हफ्ते बाद भी या 4 दिन बाद भी कर लेंगे वो काम, या 4 घंटे बाद भी कर लेंगे, बिकॉज इट्स नॉट अर्जेंट. या अभी के अभी ये मेल नहीं भेजना है, वहां आगे का ऑफिशियल काम नहीं रुक रहा है, या बच्चे का कोई डॉक्यूमेंट की 4 बजे अभी लास्ट डेट है किसी भी चीज की आपके भरने की कोई फॉर्म, तो इट्स अर्जेंट. और इफ इट्स ऑन सैटरडे तो अभी आपके पास में 2-3 दिन बचे हैं, इट्स लो अर्जेंट बट हाई इंपॉर्टेंस बिकॉज बच्चे का मामला है, उसका कोई डॉक्यूमेंट आपको फिल करना है. देन लो अर्जेंसी एंड लो इंपॉर्टेंस, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली दे विल कम ऑन द लास्ट स्टेज. टू डू लिस्ट की हम बात कर रहे हैं बहुत देर से कि कॉल लॉग जिसको बोलते हैं, स्केड्यूल भी बोलते हैं बहुत से लोग, टू डू लिस्ट भी बोलते हैं, बहुत सारी चीजें, बट टाइम टेबल भी बोलते हैं. जो आपको बोलना आप वो बोल सकते हैं. Write a list of activities that you need to accomplish today. मैं रात को बनाती हूँ, सुबह सुबह भी आप बना सकते हैं. रात को बनाने से और ज्यादा क्लियर होता है, सुबह का पूरा सॉर्ट आउट रहता है, पहले किसको फोन लगाना है, पहले कहाँ जाना है, पहले क्या काम करना है. सो जस्ट अ डे बिफोर, और वैसे भी हफ्ते भर का हम बना के ही रखते हैं. सो जस्ट एक रात पहले रिवाइज करें पूरी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दिमाग में. आप तो या तो लिख के रख लीजिए या दिमाग में, एंड उसके बाद में उसको प्रायोरिटाइज कीजिए. जो मैंने फॉर्मूला लास्ट आपको स्लाइड में बताया, इस हिसाब से आप उसको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं. एंड देन चेक टू सी इफ देयर आर एक्टिविटीज दैट यू कैन accomplish at the same time. अब ये लास्ट लाइन को आप ध्यान से देखिए. चेक टू सी इफ देयर आर एनी एक्टिविटीज दैट यू कैन accomplish at the same time. Of course there are various things which you can do 2 things at a time, but please listen carefully. Active thing and passive thing, दोनों active thing can be a very big risk for you. Like आप ड्राइव भी कर रहे हैं और आप फोन पे भी बात कर रहे हैं, एंड विदाउट ब्लूटूथ और हैंड्स फ्री कुछ आपके पास नहीं है. आपने ये जो सर्कस दिखाते हैं, या बाइक चला रहे हैं, वाई कार, हम तो बोलते हैं बाइक चला रहे हैं, एंड ये कान पे इस तरीके से जो आपका एक एंगल पोस्चर बना है, इट्स सो रिस्की फॉर यू एंड फॉर पीपल अराउंड जो चल रहे हैं सड़क पे. तो इट्स रियली वेरी रिस्की. तो ये 2 काम हम साथ में नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम दूसरे बहुत सारे काम एक साथ में कर सकते हैं. आप ब्रश करते करते आपको कुछ, मैं स्टूडेंट्स को अक्सर बोलती हूँ, आपको लगता है कि आपको कुछ याद करना है, कुछ ऐसी चीजें हैं, फॉर्मूला है किसी भी चीज का, तो आप
पेस्टेड, बहुत पेस्टेड नोट्स यूज कीजिए। आप ब्रश कर रहे हैं तो आप 3 या 4 मिनट तक भी ब्रश कर रहे हैं, आपको वो 2 फॉर्मूले याद हो जाएंगे 2-3 दिन तक। आप तो ये 2 चीजें एक साथ हो गई, बिकॉज ब्रशिंग योर टीथ डजंट नीड सो मच ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स नॉट इन्वॉल्विंग योर होल सेंसेस। लाइक हमारे जितने भी सेंसरी वो रहते हैं वो सारे के सारे इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। और हाँ, याद करने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड मेमोरी, वहां पर वो फॉर्मूला को क्योंकि आपको रटना ही है, याद ही करना है कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के थ्रू, तो आप उसको याद कर सकते हो। तो इसी तरीके से हम बहुत सी दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, बट प्लीज रिमेंबर रिस्क वाली चीजों को हमें साथ में नहीं लेना है। देन प्रोक्रेस्टिनेशन की बात हमने बहुत ज्यादा करी, तो लेट मी टेल यू, एक साथ भी हम कोई बहुत बड़ा टारगेट अपने लिए फिक्स करते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है। सो ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल टास्क, बहुत छोटे छोटे टास्क दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो इसमें इंक्लूड किया है उसको देखिए, बहुत सारे लोग होंगे, टीचर्स हैं मोस्टली यहाँ पर। सो राइटिंग अ पेपर कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू गेटिंग रेफरेंसेस, रीडिंग रेफरेंसेस, देन राइटिंग आउटलाइन, एक रफ ड्राफ्ट आप बना लीजिए एंड देन उसकी फाइनल कॉपी बनाइए। सो ये कितने सारे हमने देखा कैसे सेगमेंटेशन किया है इसका, मैंने कितना डिवीजन करा कि पहले हम रेफरेंसेस ढूंढ रहे हैं, फिर हम उनको पढ़ रहे हैं, देन राइटिंग एन आउटलाइन, फिर हम एक रफ ड्राफ्ट बना रहे हैं। सो इसी तरीके से हम कर सकते हैं। तो एंड बट अपने आप को डेडलाइन जरूर दीजिए किसी भी चीज के लिए, कि अगर आपको ऑफिस से मिली है मंडे, देन यू योरसेल्फ गिव इट फ्राइडे, नहीं तो वो वही होता है लास्ट मोमेंट पे। देन लर्न टू से नो, मैंने कहा था मैं बताऊंगी कि नो किस तरीके से बोलना है। स्टूडेंट्स है तो आई रियली शुड स्टडी, यू कॉट मी इन द मिडल ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट, या आई विल कॉल यू लेटर, इस तरीके के आप फ्रेजेस अच्छे तरीके से, बट ये ध्यान रखिए कि इट शुड बी वेरी पोलाइट एंड वेरी पॉजिटिव, ना होते हुए, ना इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, नो इज अ वेरी नेगेटिव थिंग, बट नो को हम पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं, ये आई कैन गो द मूवीज टुनाइट बट आई कैन गो ऑन सैटरडे, आपने मना तो किया लेकिन आपने दूसरा उसके बाद में प्लान भी बता दिया। अगर हम सैटरडे को चले तो, क्योंकि यार दूसरे दिन वीकेंड है, पूरे हफ्ते भर बहुत सारे काम रहते हैं, सो ये सारी चीजें रहती हैं, एंड लेट मी चेक माई प्लानर एंड गेट बैक टू यू। तो आप बिल्कुल सामने वाले को उतना इंपॉर्टेंस दीजिए, मगर ना ही बोलिए, बहुत तरीके से बोलिए, वरना लोग बहुत जल्दी बुरा भी मान जाते हैं। वेटिंग टाइम की हमने बात की थी, आई विल गिव यू अ टिप रिलेटेड टू वेटिंग टाइम। इट इज द टाइम यू स्पेंड बिटवीन योर मीटिंग, क्लासेस, इवेंट्स एक्सेट्रा। ट्रेवलिंग टाइम, मैं यहाँ पर शार्प 1 o'clock से कुछ पहले लॉग इन हो गई थी, मुझे लग रहा था टाइम लगेगा। मैं यहाँ की स्क्रीन से हट करके उतनी देर में मैंने एक मेल सेंड कर दिया। इट टुक हार्डली फ्यू सेकेंड, बस मुझे जीमेल खोलना था, क्योंकि वो मैं इसके बाद में करती, मगर मैंने एक काम निपटा लिया। सो दैट इज लाइक कितना बड़ा एक मेरा काम हो गया। सो ट्रैवलिंग टाइम होता है, हमारी क्लासेस के बीच का टाइम मिलता है, एंड इवन इफ यू आर गोइंग टू डॉक्टर्स प्लेस, हम कोविड टाइम को भी छोड़े, इसके अलावा भी होता है, बच्चे को ले लेके जाते हैं हम डॉक्टर के यहाँ, बैठे हुए हैं क्यू में, हम बैंक गए हुए हैं, वहां पर हमको बोला जा रहा है 5 मिनट बैठिए, भी 5 मिनट बाद आपका काम करते हैं, भीड़ है, और आपको फिर मालूम ही है 5 बोला है लेकिन 10 मिनट तो लगेंगे। सो व्हाई नॉट डू योर ओन वर्क इन दोस 10 minutes। आपको जो भी 10 मिनट का काम है आप देखिए। आप हाँ, फोन पे आप वर्बल डायरिया नहीं कर सकते कि चिल्ला चिल्ला के बातें कर रहे हैं, सो डोंट टेक दोस कॉल्स, या कॉल्स नहीं लगाइए, बट यू कैन डू गूगल सर्फिंग का आपका कुछ काम था, आपको कुछ डिजाइन देखने थे, आपको कुछ लिखना था, आपके पास में स्मार्टफोन है, आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो जस्ट लुक कि आप उस वेटिंग टाइम में ऐसी कौन सी 5 चीजें जो आप 10 मिनट में कर सकते हैं। आप कभी आपको 20 मिनट मिले हैं, आपके पास में ड्राइवर है, आप गाड़ी में बैठ के ड्राइव कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जितना भी आपको टाइम मिल रहा है बस पहचानना सीखें। एंड आई एम श्योर आफ्टर दिस क्लास यू विल बी एबल टू फाइंड आउट कि मेरा कौन सा वेटिंग टाइम है, और वो अगर आपका फिर जब ऐसे वेस्ट होने लगेगा फालतू बैठ करके, तो आपको खुद को लगेगा कि इतनी देर में मैं ये छोटे छोटे 5 काम निपटा सकती थी, या एटलीस्ट मैं ट्रेवल ही तो कर रही थी, 2 कॉल निपटा सकती थी। बट बी फ्लेक्सिबल, ऑलवेज लीव सम फ्री टाइम फ्रॉम सम लास्ट मिनट एडिशंस। बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे आप, ये मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। जब टाइम मैनेजर, टू डू लिस्ट और ये वेटिंग टाइम, ये मेरे साथ भी हुआ है, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट अपने लिए मैं बना लेती थी शेड्यूल एंड ऑल, और मैं कुछ फ्लेक्सिबिलिटी जब नहीं रखती थी, और कुछ भी एकदम से लास्ट मोमेंट पे कुछ नई चीज आ जाती थी, एंड आई वाज नॉट रेडी फ्रॉम, मतलब अब हाँ तो बोल देते थे, वो भी ले लेते थे काम, लाइक गेस्ट आ गए और मेरा उस दिन बहुत सारी चीजें हैं और उनने भी कुछ काम दे गए, ये कर देना वो, तो टाइम तो है नहीं, आपका फिक्स शेड्यूल चल रहे हैं। So it ultimately gives you very much stress in your mind. So to be stress free, आप ऐसा कुछ flexibility रखिए कि कोई चीज अगर नहीं हो पा रही है उस टाइम पे, तो बीच में आपने flexibility ऐसा options रखे हुए हैं कि ठीक है आप उसको adjust कर सकें। एंड वर्क इन योर प्राइम टाइम, जो हम बात कर रहे थे प्राइम टाइम की, कि टीवी के शोज होते हैं प्राइम टाइम, तो आप सबको पता होगा कि प्राइम टाइम पे जो एड्स आते हैं, एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, वो 8 से 10 का जो टाइम होता है, उनकी कॉस्टिंग सबसे ज्यादा होती है। सो इट मीन्स
कि पूरा दिन, और दोपहर में अभी 2 बजे के टाइम पे आप देखिए जितने भी फीमेल्स के सीरियल आ रहे होंगे तो उसमें कोई वो बहुत ज्यादा ऐसे वाले एड्स नहीं आ रहे हैं जिनमें बहुत ज्यादा पैसा लगा हुआ है। हम सबको पता है कि पूरा दिन एक जैसा नहीं है। प्राइम टाइम की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं, हमें टीवी से बहुत अच्छे से पता चल रही है, न्यूज इंपॉर्टेंट सारी प्राइम टाइम पे आती है। सो ऑन पर्टिकुलर टाइम ऑफ अ डे सेम इज हैपेंस विथ योर बॉडी क्लॉक भी हमारी ऐसी है, हमारी एनर्जी, हमारी थिंकिंग एबिलिटी, हमारी एफिशिएंसी, एंथुजियाज्म, जितने भी अगर हम बात करें तो दीज आर कंपैरेटिवली हाई इन आवर प्राइम टाइम। अब ये आपको पहचाना है आपका प्राइम टाइम क्या है। सो प्रोडक्टिविटी उसमें बहुत ज्यादा होती है। लेट मी गिव माय एग्जांपल। मैं जब स्टूडेंट थी, कॉलेज में पढ़ती थी, मेरा प्राइम टाइम मिडनाइट हुआ करता था। हम फ्रेंड्स आपस में डिस्कस करते, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, 2-2 बजे तक हम नोट्स डिस्कस करते थे। बट दैट वाज आवर प्राइम टाइम। बहुत अच्छा याद होता था और सारी चीजें पढ़ाई होती थी। बट आई डोंट नो ओवर द इयर्स इट गॉट चेंज्ड। मैं अब बिल्कुल सोना जल्दी पसंद करती हूँ। बहुत लेट नाइट तक मैं जो भी चीज पढ़ूंगी या बनाऊंगी या याद करूंगी या कुछ भी नई चीजें, मेरा बहुत प्रोडक्टिव आज नहीं है वो। मुझे पूरे दिन भर की थकान एंड वो, और उसकी बजाय अगर मैं 4 o'clock उठती हूँ तो दो 4 to 8 जो मेरा होता है वो बहुत प्राइम टाइम होता है। वो 4 घंटे मुझे बाकी के 8 घंटे जो मैं काम करती हूँ उससे ज्यादा वो रहते हैं। मीटिंग्स हम सब बहुत ज्यादा करते हैं, जस्ट ध्यान रखिए सबसे ज्यादा टाइम हमारा मीटिंग्स में जाता है। मीटिंग के लिए बहुत अच्छा फंडा है। हम दरवाजे वगैरह सब बंद करके, फोन वगैरह स्विच ऑफ करके, और जितना भी हमारा टाइम है उसमें हम पहले से एजेंडा बना लें। लास्ट में भी जो भी डिसीजंस लिए गए उसके मिनट्स वगैरह बना लें। डिस्टर्ब ना होए। फोन हमारा आजकल बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है जो हम सब कैरी करके चलते हैं साथ में। मैंने अपना फोन साइलेंट करके पटक दिया एक तरफ। ये एक टाइप की मीटिंग ले लीजिए, कोई भी चीज, आई एम नॉट कंसर्न्ड दुनिया में कुछ भी हो रहा होगा, कोई मुझे कितना भी कॉल कर रहा होगा, बट आई एम गिविंग यू ऑल इंपॉर्टेंस, यू आर गिविंग मी इंपॉर्टेंस। हम यहाँ कन्वर्सेशन में है, मीटिंग में है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि फोन की वजह से दे आर ऑल द टाइम नोटिफिकेशंस ऑन है, हम बैठे हुए हैं, कुछ भी छोटी मोटी भी मीटिंग्स होती हैं तो उसमें भी वो डिस्कशंस वगैरह ना सब कोई वैल्यूबल नहीं निकलता है। So as time management skills develop, you'll see that your stress and anxiety levels will go down and productivity will go up. So it includes again for इसको conclude करने के लिए मैं बोलूंगी कि day planners बनाएं, to do list बनाएं, weekly भी बनाएं, long term short term calendars बनाएं। ये organized रहने में बहुत ज्यादा मदद करेगा and आपका जो procrastination की आदत है वो eliminate होगी, क्योंकि वो बहुत सी चीजों में रहती है। चाहे वो किचन से रिलेटेड हो सकती है, हमारी फिटनेस से रिलेटेड हो सकती है, कोई बुक को पढ़ने के लिए हो सकती है, कभी किसी चीज को प्रिपेयर करने के लिए हो सकती है। सो इट्स बेसिकली कि हमें इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मैम टाइम यहाँ पर भी कम पड़ रहा है, बट ठीक है, देखते हैं अभी जितना टाइम चल रहा है उसमें। टाइम मैनेजमेंट को कंक्लूड करने के लिए मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी कि हमारी लाइफ हम फिक्स तो कर रहे हैं बिकॉज वी ऑल आर प्रोफेशनल। हमें सब चीजें बहुत सिस्टमैटिक चाहिए, सबकी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है, फैमिली की, बच्चों की, हमारे पेरेंट्स की, और हम जिनके पेरेंट्स हैं तो हमें बहुत जगह प्रूफ करना रहता है अपने आप को। तो सिस्टमैटिक टाइम मैनेजमेंट से लाइफ बहुत सिस्टमैटिक तो हो जाती है, लेकिन फिर भी एक बहुत अच्छी छोटी सी पोयम है जो मैं शेयर करना चाहूंगी, प्लीज उसको भी ध्यान में रखिए, क्योंकि जिंदगी में सब चीजें चलती रहेगी मगर कभी कभी जरूरी भी है कि कुछ चीजें अगर छूट भी जाए तो कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। कभी कभी ऐवे ही चलते रहना चाहिए। ठीक है, ओके, ठीक है, नहीं कर रहे, संडेज है, अपने आप को बिल्कुल टोटली ब्रेक दीजिए। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए जो मैंने एक पोयम जो आपको बोल रही हूँ, आई रीड इट आउट। कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है, अचानक से आज यूं ही ख्याल आया, कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। अखबार पढ़ा तो प्राणायाम छूटा, प्राणायाम किया तो अखबार छूटा, दोनों किए तो नाश्ता छूटा, सब जल्दी जल्दी निपटाए तो आनंद छूटा। हेल्दी खाया तो स्वाद छूटा और स्वाद का खाया तो हेल्थ छूटी। कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जिंदगी जल्दी की तो सामान छूट गया, जो ना की तो ट्रेन छूट गई, जो दोनों ना छूटे तो विदाई के वक्त गले मिलना छूट गया। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। खुश हुए तो हंसाई छूटी, दुखी हुए तो रुलाई छूट गई। मतलब कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। इस छूटने ही तो पाने की खुशी है। जिसका कुछ नहीं छूटा वो इंसान नहीं मशीन है। इसलिए कुछ ना कुछ छूटना तो लाजमी है। जी लो जी भरकर, क्योंकि एक दिन ये जिंदगी छूटना भी, यू ऑल कैन से लाउड, लाजमी है। लाजमी है। सो वेरी गुड। So this was like all about time management की जो हम बात कर रहे हैं। मैम, I would like to know, हमें टाइम बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा क्या? Ma'am, actually the session is only for an hour. Okay,
ओके सो आई गेस मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा कुछ टाइम है लाइक उतनी देर में अगर इफ समबडी वांट्स टू आस्क समथिंग ऑन चैट बॉक्स तो लाइक यू कैन आस्क हम चैट बॉक्स में ओपन कर रही हूँ सो वी कैन डिस्कस लाइक इफ वी हैव 2-3 minutes. Thank you Anamika for complimenting for the very nice poem. तो मैंने बहुत शॉर्ट में बहुत जल्दी कुछ बहुत अच्छे टिप्स जो these tips on की कहीं से उठा मैंने कहा ये कोई कोर्स नहीं होता है टाइम मैनेजमेंट या कहीं से ला करके हम नहीं कर देते. These are the things which I am implementing and these are the things जो मैंने बहुत रिसर्च एंड देखी है. All the success people, those who are being successful because of their time management, वो ये सब चीजों को फॉलो करते हैं. आई थिंक सो यू ऑल नो मोदी जी 4 बजे उठते हैं, महात्मा गांधी जी 4 बजे उठते थे. जितने भी हमने पढ़ी हैं हमें बताया गया है जो चीजें आप फॉलो करके देखिए यू फील कि हाँ वाकई में ऐसा लगता है बहुत बड़ा दिन है हमारे पास बहुत सारा टाइम है अगर हम 4 बजे उठते हैं तो. सो इट्स लाइक अपने ऊपर है हम अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे बनाते हैं. Very informative session, Rashmi. Thank you so much, Alpna. Dr. Kumar, nice session. Thank you so much. And if anybody of you want to ask something or if you want to share something. Yes, Sanya, I remember Sanya Srivastava is a chartered accountant and she was like a few years ago she always used to say ma'am aapke sessions attend karne hain and I think so ye first session hai which you are we can say no directly ma'am. How we can say एक मिनट में ये क्वेश्चन आया है मैं ये क्लियर कर दूं. नहीं मैम और सर whoever is it डॉक्टर कुमार we can't say directly no. यही चीज मैंने बताई बहुत ध्यान रखना पड़ता है ये हमें अपनी हैबिट में लेकर के आना पड़ेगा. सामने वाले को बुरा ना लगे ना बोलने के बहुत सारे तरीके क्योंकि ना अपने आप में एक बहुत नेगेटिव वर्ड है. सो जस्ट ट्राई कि आप बहुत सारे जैसे मैंने कुछ 2-3 आपको एग्जांपल्स फ्रेजेस शो किए बना करके कि लाइक लेट मी चेक या हम सैटरडे को चलें क्या लाइक मेरे बहुत सारे लोग होते हैं लाइक हम सबको आई हैव अ गुड सोशल सर्कल मेरी फ्रेंड्स बोलती हैं यहाँ चलें या ये करें. आई रियली नहीं मैं नहीं चल सकती नहीं मैं नहीं आई डोंट हैव टाइम आई वर्किंग ये है वो मैंने देखा ऐसे बहुत से लोग इस तरीके से बोलते हैं आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस स्टफ एंड ऑल. बट मैं ये सब ना बोल करके यार हम सैटरडे को करें क्या मैनेज इस दिन करें क्या मैनेज या इस टाइम पे करें क्या मैनेज. सो ये सारी चीजें हमें थोड़ा सा बस बोलना के ऊपर कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है. एंड रघुवंशी मैम से जब बात हुई थी हमारी चंद्र किरण रघुवंशी मैम शी टोल्ड मी कि मैम किस पे रखें आपका तो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छा है डिजिटल जो मैं बता रही हूँ अभी अपीयरेंस और ये सारी चीजों पे हमारा इमेज मैनेजमेंट बहुत सारे टॉपिक्स हैं. बट बहुत मैंने उनसे बोला था 1 घंटे में आई वुड लाइक टू टेक टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट उसके बाद देखेंगे. सो सानिया आई रियली आई एम लुकिंग फॉरवर्ड मैं और भी कहीं कुछ ऐसे एंड ले पाऊंगी तो आई वुड बी sharing the link and all because I'm really very thankful कि सेज ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि I could share my link with and invite my friends for this. So because हम लोग आम जिंदगी में ऐसे बैठ करके ऐसा लगता है ना लेक्चर दे रही है. सो आई एम फ्रेंड्स विद माई फ्रेंड्स एंड सोशल लाइफ एक अलग हो जाती है तो हम वहाँ सबको दिन भर बैठ के लेक्चर नहीं झाड़ सकते. सो वो वाली चीजें एक डिफरेंट चीज हो जाती है. सो आई वुड ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड कि मुझे कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ मैं शेयर कर सकूं अपने लिंक. एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि हमें ये कोरोना टाइम पे ये सब वर्चुअल प्लेटफॉर्म में ये पॉसिबल हो पा रहा है वरना मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसा कुछ कर पाते हैं तो सब लोग आप ही पाते हैं. सो से आई वुड रिक्वेस्ट कि हमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं अगर कभी फिर से 1 घंटे का टाइम मिले तो आई वुड लाइक टू शेयर फ्यू मोर टॉपिक्स और उसके टिप्स. सो एंड अगेन इट्स 2 o'clock आई थिंक सो. मैम ने जैसे मुझे बताया था ये अपने आप डिस्कनेक्ट हो जाएगा राइट एम आई राइट. Yeah, ma'am, it's about to get over. Yeah. क्लोज तो क्लोज हुए उसके पहले मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी थैंक यू करना चाहूंगी ऑल द स्टाफ टीचर्स मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जितने भी सेज ग्रुप के हैं यहाँ पर एंड माय डियर फ्रेंड्स जितने भी आए हैं. यू कुड आई एम रियली वेरी थैंकफुल आप लोगों ने इतना टाइम निकाला एंड वी कुड हैव अ ग्रेट टाइम ओवर हियर. आई फील कि इसमें से कुछ 2-3 चीजों को अगर आप इम्प्लीमेंट या एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो यू वुड फील कि आपका कुछ चेंजेस आए हैं. And if you feel, you can give me a feedback for those things. So कभी भी डिस्कनेक्ट हो जाएगा इसलिए I was thinking कि मैं पहले थैंक यू कर दूं थैंकिंग नोट दे दूं. Yes, Raghuvanshi ma'am, I can see the thumbs up from you. Nidhi ma'am, thank you so much for being my Sarthi for today. Digital platform. Rashmi ma'am. Yeah, thank you Rashmi ma'am for coming over here and telling us that really we are not the machines.
We are one working as human beings, and we can have flaws also and loopholes also. But जिंदगी चलती रहनी चाहिए इसी तरीके से, चाहे हम बीच में रुकें या ना रुकें. We should always get self-motivated. Thank you for telling us that. We should never say no, but there are many other ways through which we can convey that there is a no from us. Whether we are personal ways or we are in professionalism. Thank you for giving us basic tips of life so that we can groom ourselves and get always motivated, energetic to work as mothers, and we can perform different kinds of role in our life. Thank you very much, ma'am, from the entire... As we always say, show must go on. Yes, from the entire Sage Group family, I would like to present a certificate of appreciation to you, ma'am. Tanu, ma'am. Thank you very much, ma'am. Thank you so much. And grooming us and making us know what exactly we need to do in our life by balancing our professional and personal life. Thank you very much, ma'am.